Hello everyone. Today we are here with a top ranker of GATE 2024 in chemical engineering, rank 9, Mr. Keval Vasoya. Keval Vasoya, many congratulations from entire team of EII. Thank you, sir. अच्छा केवल थोड़ा लेट हो गए हम टॉपर स्टॉक्स को ये करने में, बट एनीवेज आज के इस टॉपर स्टॉक्स में आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत ही स्वागत है। ठीक है ना। और सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप अपने वर्ड्स में आप अपनी एक छोटा सा इंट्रोडक्शन बताएं और बताएं कि ये गेट की जर्नी जो है कैसे आपने स्टार्ट करी और इसमें क्या क्या हर्डल्स आए, क्या क्या आपके स्ट्रेटजीज रही और क्या क्या आपके मेंटोरशिप रही और क्या क्या जो है उसमें सिलेक्शंस ऑफ कंटेंट्स का, स्टडी मटेरियल्स का, टेस्ट सीरीज का कैसा रोल रहा और कैसे आप बेनिफिट मिला आपको। Yeah. Yeah. Hi everyone. Myself Keval Vasoya. I have completed my BTech Chemical Engineering from Dharamsi Desai University, Nadiad, in 2020. And after that, I got placed in Yokogawa Limited, Bangalore. So after that, actually, I was placed in February 2020, and exactly after 1 month, we all know COVID came. So because of that, our joining was 1 year late. But at that time, I don't have any idea or I don't have any motivation to do GATE. So at that time, I haven't done anything. But after the joining the company, after that, I have been in mind like I should do something else. I should not do the everyone else are doing. So कुछ तो अलग करना है. तो ऐसा कुछ motivation था. तो फिर after that in 2022, I have started the GATE preparation. So in 2022, I have done the all course completion and self preparation only I have done. But only majority of the thing in my mind was to do the practice, more and more practice, and the revision and previous year question. So first in GATE 2023, I have completed for GATE 2023, I have completed all the courses. After that, in by self only, and after that, I have done the previous year questions and then revision. And for the test series, there are many options are there, but my many friends are telling like EII test series are the best. So I have taken the test series in for the 2022 EII test series. And for in GATE 2023, I got all India rank 373 in GATE 2023. But still, I was not satisfied with the rank. I thought I can do more. I can get less rank than this. So after that, actually, course was already completed in 2022. So I was very well prepared before also. So for the next year for 2024, what I have done, I have revision 2 to 3 times. I have done the revision. After that, previous year question also 2 to 3 times, and more importantly, for that self preparation only I have done. And after that, for while choosing the test, because whatever you will study or whatever you do, but main important thing is practice, according to my point of view. So after you will practice, then only you will get some confidence and you will get to some idea. Like interface also important. Like whatever in your mind pressure also will be there in exam. So you should be used to of it. So that's why practice is very important. So in for GATE 2023, I have given the EI test series. So I personally like that so much. So in for 2024 also I have taken the EI test series. So first of all, while doing the revision, like in EII test series was like divided, like full subject wise test. After that, in subject wise also like basic and advanced, and same for full length test also. Like pre-gate test series also will be there, and a full length test also there. So what I have done now for subject wise test, first I have taken the revision of like one subject. After that, that subject wise test I have given, so I will get some confidence and I will get to know the topics which I am weak. So likewise for the same all the subjects I have done the same strategy, one subject revision and that subject revision, that test series I have given. So likewise all subject test series I have finished. After that, the full length test series I have started to take. And in full length test series also, like in test series there was option of bookmark. That option is very important for me.
So whatever questions I feel it is like very important, or whatever it is very good conceptual, I will do bookmark for that. So in full length test series also, first I have given all the basic level, after that the advanced level, and before the 1 week before the exam, I have finished all my test series. So completely I focused on whatever I have bookmarked the question. No, that questions only I have read, and I have read all the concepts. So it is very beneficial for me in the exam. So in the exam I was not feeling, I was feeling like I am giving the test series only. So like that only confidence, because there are total 75 tests. So it Correct. builds so much confidence in my, because this time many my friends are telling it this time very lengthy paper or very hard level, but personally I didn't feel, because of the test series it didn't feel me that much long paper. So because of that only I achieved this much rank. I hope, Keval, are you from the same college of AIR rank 1 of I am 2021, the Mr. same Dhruval batchmate Thakkar? only. Through all batchmate only. So, sir, अच्छा, first ध्रुवल of की all, कॉलेज है ना? हाँ, ध्रुवल का ही कॉलेज, सेम कॉलेज, सेम बैच. थोड़ी सी ऑडियो, सेम कॉलेज सेम बैच, चलो सर. प्रियांक सर, जी सर. प्रियांक सर, ये हमारे लिए ये एक और बहुत ही अच्छी हमारे लिए बात है कि जहां से हमारे एक वन ऑफ द, कहें कि अभी तक कर जो सबसे टॉप स्कोरर रैंक 1 हमारा केमिकल का ध्रुवल ठक्कर, उसी कॉलेज से फिर से उन्हीं के बैचमेट आफ्टर वेट पीरियड ऑफ 3 ईयर ऑलमोस्ट कह ले कि वो फिर से वो सिंगल डिजिट रैंक में है. या सर. तो आप कैसे, आप एज ए मेंटर सर आप कैसे देखते हैं इन सभी बच्चों को, जब ये पूरे सेशन जब आप इन लोगों को गाइड करते हैं और ये बच्चे जो है एक लंबा प्रिपरेशंस मेथड्स में इन्वॉल्व होते हैं, इतने सारे सब्जेक्ट्स, इतना लंबा करिकुलम, एग्जाम का प्रेशर, और फिर एक इस तरीके के नेशनल लेवल पे ऑल इंडिया रैंक 9 या सिंगल डिजिट रैंक हो गए. बीइंग ए मेंटर्स, मतलब आखिर आप लोगों का प्रोजेक्शंस क्या होता है इन स्टूडेंट्स के लिए, कैसे आप इनको नर्चर करते हैं? As first of all, our director sir said, Keval, a very big congratulations from the entire team of EII. And just I want to add this thing, when Dhruval get the EIR 1, from that year, this you can say it as the trend start from that particular college toward the preparation of the gate. And sir, after that there are the lots of students missed from that college, which was not so much good regarding the economical background and all these things. So sir, they connected through the calls. After that they ask all about the strategy, sir, how we can prepare for the gate exam, the juniors of Dhruval. And after that, sir, either they join the EII or not, we mentor in very whatever the best way we can do. And after that, the entire team told us that you can first of all make the strategy in this way, and after that complete the subject one by one. And after that, in any question, if you have the doubt, so just you can directly message us. You can connect us through the video calls. And after that, either you are join the coaching or not. Okay, that is because just as a community, this community is very small. So sir, either way they are connected, all the students are connected with us. And after that, when they completed the entire subject, so just we told them, then after that you have to complete the test series from very starting to the means, as the Keval says, sir, from very basic levels to the advanced level, all the means will complete all the papers. So, sir, after that, because there are the lots of students who completed this in the same way as the Keval complete. But Correct. after that, sir, there are the lots of things, because this year also there are the lots of students performed extremely well throughout the year.
but in the last in the exam hour, Correct. in the exam hour, they did not perform so well as the Keval performed. So, sir, there Correct. was a lot of examination pressure and the practice because Keval says that is all about the practice game. If they did Correct. not do the practice to the same extent as the Keval do, okay, so they performed, but not whatever means The not so much expectation was exceptional, more. whatever we want. Correct. Correct. Their expectation was higher than the results that they have get. Yeah, sir. So, sir, नहीं as a भाई mentor, that is our duty. Okay, that whatever the students connected in any by any medium. Okay, so हाँ just uh, we have to make that the mentorship in the better way, whatever we can do. अच्छा And in the केवल upcoming years, सर हाँ केवल से एक सवाल मैं करता हूँ केवल बिकॉज देखो बिकॉज एक बहुत बड़ा अगर मैं केवल की अगर मैं जर्नी देखूं तो केवल जो है ध्रुवल ठक्कर के 2021 के बैचमेट है 2024 में ये पूरा 3 ईयर का एक बहुत बड़ा एक पेशेंस लेवल होता है कि जब आप एक बीटेक ग्रेजुएट्स होते हैं और उसके बाद फिर एक कंसिस्टेंसी आपको चाहिए होती है कि आई हैव टू चेज फॉर अ सिंगल डिजिट रैंक और फिर 3 साल का एक रैगरस जो है एक अपने आप को स्टडी के टेम्परामेंट में मेंटेन करके रखना दैट इटसेल्फ अ बिग चैलेंज और केवल आपको आपके पास भी ये चैलेंजेस आ रहे होंगे क्योंकि एक लंबा पीरियड रहा होगा आप हाँ इस प्रेशर को कैसे आपने कैसे टैकल किया बिकॉज ये सेम सिचुएशन और भी कई स्टूडेंट्स के साथ होते होंगे एक्चुअल में मैं 2022 में जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया तब मेरा जॉब चल रहा मतलब तब मैं बेंगलोर में जॉब चल रहा था तो उस टाइम भी मतलब 8 to 9 hours लाइक इट वाज वर्किंग आवर्स और लाइक 8 to 9 hours so I have to spend some time for myself like I am saying like yeah I am doing something for company but for myself what I am doing so हाँ that's why for that motivation for that only like I like started for the preparation and after that recently for 1 year I joined the another company in that actually I used to work daily 10 to 12 hours for that 10 to company 12 and oh my god and for like my daily schedule will be like office time will be from 9 a.m. morning to 7 p.m. So I used to oh, wake up at 6 o'clock for the reading and from 6 o'clock to around 8:30 I will be read and after that from coming to office like at 7 p.m. I will be so much tired but after that oh. some like small nap I will take for 20 minutes 15-20 minutes and after the dinner I will once again sit for the study like from 9 o'clock and from 9 o'clock to 11 o'clock so for last 3 months my daily schedule will be like that only so I used to sleep for like only 6 or 7 hours only maximum 6 to 7 hours सर so, sir, this सर is the best thing because, sir, as सर the देखो इनकी स्टोरी से बच्चे कितने इम्प्रेस हो या नहीं हो वो बहुत मुझे छोटी बात लग रही है सर बट इससे एक चीज को जो सर मुझे बहुत मतलब इम्प्रेस किया केवल की बात में केवल ने सर हाँ आफ्टर कंप्लीटिंग द बीटेक 1 साल तक टेट के बारे में कोई सर मतलब इनको जानकारी नहीं थी अता पता कुछ नहीं था ये इनका बस फोकस ये था कि जॉब करनी है क्योंकि प्लेसमेंट हो गया था बट ड्यू टू द कोविड सिचुएशन कि वो 1 साल डिले ज्वाइनिंग हुई बट इसके बाद जब इन्होंने कंपनी में काम किया तो सर इनका एक जो ये लाइन है ना कि सर मैं हाँ कंपनी के लिए तो मैंने काम किया था 8-9 घंटे बट उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मैं अपने लिए क्या कर रहा हूँ हाँ हाँ after that they start the preparation so that is the best thing means the students which are in the job but if they are their mind set up okay or their goal is fixed so sir whatever they are doing the job and any other activities so but after that if the goal is fixed so just they can achieve मतलब एग्जाम के पायर से बीटेक पास आउट होने के 1 साल के बाद ये प्लान करते हैं और फिर इतना ऑनेस्ट अप्रोच और डेडिकेटेड मतलब मैं कहूँ कि ये चलते हैं कि अपने आप को एक सिंगल डिजिट में रख लेते हैं बिल्कुल सर क्योंकि बाकी स्टूडेंट जो बीटेक से जो प्लान करते हैं बीटेक के बाद 1-2 साल अपने आप को डिवोट करते हैं और वो बच्चे अगर परफॉर्म नहीं कर पाते वैसे सभी स्टूडेंट्स के लिए केवल एक आपके लिए एक रोल मॉडल है बिल्कुल
ऐसे तो हमारे सर। पास बहुत सारे रोल मॉडल हैं जो गेट 2023 में मिलेंगे, 22 में मिलेंगे, 21 में मिलेंगे, बट जी सर। पुराने रिजल्ट को बहुत जल्दी लोग भूल जाते हैं। बट सर जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं उनको इनसे सीखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। सर उसके बाद में जो इन्होंने एक एक चैलेंज और लिया है कि 2023 में 372 रैंक थी। उसके बाद हाँ, में दूसरी जॉब में स्विच किया जहां पे और ज्यादा मतलब ऑफिस वर्किंग आवर थे। और सर बिल्कुल उसके बाद भी फिर से अपने पढ़ाई के लिए टाइम निकालना, क्योंकि बिलीफ था कि कहीं ना कहीं मेरी जब इतनी रैंक आई है तो मैं और अपना प्रैक्टिस इंप्रूव करके अपना कॉन्सेप्ट इंप्रूव करके जहां भी मैं लैग कर रहा हूं, मैं और अच्छी रैंक अपनी इंप्रूव कर सकता हूं। और सर केवल ने करके दिखाया है वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक कहते हैं ना, एक कहावत होती है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार हार नहीं नहीं हाँ, होती। होती। बिल्कुल जी सर। ठीक है ना। अच्छा, सही है। मुझे जहां तक याद आ रहा है, ये विमल गांधी सर के स्टूडेंट भी हो तुम कॉलेज में, राइट? करेक्ट करेक्ट। वहां से ही अरे सबसे पहले पता चला था गेट के बारे में। सर, विमल गांधी सर से मेरी बात तभी हुई थी अब हाल में, और जैसे गेट का रिजल्ट आया था तो ही वॉज सो हैप्पी कि मेरी फोन पे कन्वर्सेशन हुई, सेड कि सर, दिस टाइम अगेन आवर स्टूडेंट हैज डन। और वो इतना एक्साइटेड थे, इतना खुश थे, जैसे लगता है ना कि जैसे अपने एक घर का बच्चा, बिल्कुल। जो बिल्कुल लगता हो आदमी उसके लिए जो एक एक्सप्रेशन शो करता है ना, कि उसका जो एक हैप्पीनेस होता है कि अचीव किया, मेरा रिजल्ट है, तो वो चीज उनको बिल्कुल ये लगा। और वो बहुत ही सर ज्यादा ये थे कि सर, हमारे कॉलेज से इतना अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। और उन्होंने मेरे को सर इसी बोला भी कि सर आप एक बार आइए सेमिनार के लिए। मैं बोला सर मैं प्लान करता हूँ 2025 के लिए। सर इसी इसी क्वेश्चन के साथ में मैं केवल से क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। आफ्टर द एज द गेट रिजल्ट केम, सो हाँ, केवल क्या मतलब क्या फीलिंग है इस टाइम पर? बस एक्चुअल में तो जब एग्जाम देने के बाद बाहर आए तो तब तो थोड़ा कॉन्फिडेंस इतना था कि इस बार 100 से अंदर रैंक आएगा, उतना ओह, कॉन्फिडेंस तो। But after that, the all like rank predictor, and I have checked in the online. So from that, I get to know some below 50 rank I will get. And like before, on the day of the result, I thought like, okay, I'll get something 20, 25, that much all India rank I expected. But after the result, I came like I see single digit. And after that, I have seen, oh, I have got the single digit rank. So I was so happy after knowing that. अच्छा सब प्रियांश सर, सबसे अच्छी बात है ना कि केवल ने कहीं से कोचिंग भी अलग से नहीं करा इधर उधर से। जी सर। ठीक है ना। और वो डेडिकेटली जो है वो ईआईआई का ही, वो जो टेस्ट सीरीज भी दिया तो ईआईआई का ही दिया है। हाँ बिल्कुल सर। तो सबसे अच्छी चीज है ना कि टेस्ट सीरीज जब बच्चे जब देते हैं ना, और टेस्ट सीरीज का आउटकम या उसका जो फीडबैक है, उसकी जो इवेल्युएशन, मैं अभी भी जितने भी फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं उनको भी मैं कहता हूँ, टेस्ट सीरीज को आप 1000 2000 रुपीज में बाई कर लेना, इट्स नॉट अचीव। द वे यू अप्रोच योर टेस्ट पैकेज, यू शुड अपियर फॉर द टेस्ट अनटिल एंड अनलेस, तब तक नहीं दे जब तक कि वो सब्जेक्ट आपका प्रिपेयर्ड नहीं है। क्योंकि अगर आपका सब्जेक्ट अगर प्रिपेयर्ड नहीं है, और इस तरीके के आप मल्टीपल टेस्ट में अगर अपियर भी अगर आप हो जाते हैं और अटेम्प्ट करते भी हैं, तो आपको ये बिल्कुल समझ में आना चाहिए कि उस पेपर की जब मेरी थॉरो अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो मेरा जो उससे इवैल्यूएशन निकल करके आएगा वो मेरे किसी काम का नहीं है। ये बिल्कुल बच्चों को समझनी पड़ेगी। इफ सर। योर ड्यू टू दैट सब्जेक्ट, देयर इज अ चांस ऑफ डिमोटिवेशन दैट स्टूडेंट फील और दैट। उल्टा वहां पे क्या मिलेगा आपको? डिमोटिवेशन मिलेगा। क्या केवल आप मेरी बात से एग्री करते हैं इस बात पे? आप तो अभी एक नहीं, सही बात। बिल्कुल रिसेंट स्टूडेंट है। नहीं, सही बात है सर। और अभी मेरी थोड़ी देर पहले अभी 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 हमारे को इससे बात हुई थी, ऑल इंडिया रैंक 15 ब्राजील। ब्राजील ने तो ये भी कहा है कि सर, मैं तो एक रूटीन बना लिया था कि मेरे को ना कई बार शाम को लेट अर्ली मॉर्निंग तक मुझे जागना है, और फिर सुबह में उठ करके मेरे को 7 से 9 में इतने से इतने मेरे को टेस्ट देना है, ताकि अगर गलती से एग्जाम के दिन एक दिन पहले अगर मैं ज्यादा सो जाऊं या नहीं सो पाऊं, तो वो एंजाइटी फीलिंग भी मेरे को एग्जाम डे पे नहीं मेरे को फेस करना पड़े।
तो अपार्ट फ्रॉम स्टडी, बाकी के जो सिचुएशंस जिस तरीके से आएंगे एग्जाम्स के लिए, हर एक सिचुएशंस के लिए आपको बहुत ही फ्लेक्सिबल रहना होगा कि सिचुएशन ईस्ट या वेस्ट कुछ भी हो, एग्जाम डे का जो मेरा टेम्परामेंट होगा वो बिल्कुल ही एक कहते हैं ना कि एक मजे हुए खिलाड़ी की तरह इतनी मैच्योर्ड वे में आपको एग्जाम्स के वो 3 आवर्स को टैकल करना है कि हर वो एग्जाम तो है लेकिन कहीं से भी क्वेश्चंस का नहीं होना, कंफ्यूज होना, प्रेशर्स को कभी भी अपने ऊपर ओवरलोड नहीं होने देना। कितनी सर कामनेस के साथ आप अपने पेपर को अपियर करते हैं, प्लस एज ए स्टूडेंट बिकॉज थ्रू आउट द सेशन आपने इस सब्जेक्ट को डेडिकेट करा है, एक एक टॉपिक के लिए आपने नोट्स को इधर उधर कई बार पढ़े हैं, ये किए, तो कहीं से भी ये नहीं अप्रोच होना चाहिए कि जो भी पेपर्स को मैं अटेम्प्ट कर रहा हूं, हमारा सबसे मेन टारगेट है कि आई हैव टू मेंटेन द मैक्सिमम एक्यूरेसी, नेगेटिव मार्किंग से भी मुझे बचना है, ताकि अगर क्या केवल मैं आपकी बात करूं तो इस बार आपके कितने नेगेटिव मार्क्स और कितने एक्यूरेसी रखी? मैं सच बताऊं तो मैं जो टोटल अटेम्प्ट किए थे उसमें हाँ, से 1 या 2 ही गलत थे, बाकी के सब सही थे। क्योंकि अगर मुझे वो लाइक सब आई डोंट नो दैट आंसर, देन आई शुड नॉट वेस्ट टाइम ऑन दैट। आई शुड करेक्ट, स्पेंड दैट टाइम व्हाट आई एम लाइक नोइंग दैट थिंग। सो जिसमें मुझे आता है उसमें ही मैंने ज्यादा फोकस किया, जो नहीं आता है तो वो उसके लिए अलग से टाइम रखा। सपोज 3 आवर्स बिल्कुल का है एग्जाम, तो 2 आवर्स टोटली मैंने जो आ रहा है जितना भी आ रहा है वही स्पेंड किया। लास्ट के जो 1 आवर्स है वो मैंने मार्क्स करके रखे, मार्क करके रखे, मार्क फॉर रिव्यू, कि इतना जो क्वेश्चन है ये मेरे से नहीं हो रहे, तो उसको वापस ट्राई किया। तो उसमें से सपोज 5 नहीं आ रहे, तो उसमें से मुझे 5 में से बाकी के 2 तो आ गए। अभी वापस उसको बिल्कुल जितना बाकी है उसमें रीएवेल्यूट करता गया मैं। तो जितना जितना मुझे आता है वो तो मेरे से छूटा नहीं है, तो जो जितना मुझे नहीं आ रहा है वो छूटा तो कोई उसका कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, ये मुझे सर यहाँ बहुत पे आपके इनपुट्स हमने यहाँ पे आपने शेयर किया हमारे साथ, और मुझे पक्का भरोसा है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो केवल की बातों से एग्री करेंगे और बहुत सारी चीजों को अपने ऊपर इम्प्लाई करेंगे। और गेट इज जस्ट एग्जाम, आप वन डे में कुछ भी इसमें एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। सब्जेक्ट श्योर अपने आप में बहुत वास्ट सिलेबस है, और कहीं ना कहीं एक बहुत ही एक थॉरो स्टडी की जरूरत है, जिसमें कि आपके बेसिक सब्जेक्ट्स के कंसेप्ट का क्लियर होना इस एग्जाम्स के लिए द फोर मोस्ट रिक्वायरमेंट, प्लस प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। दूसरी अगर मैं बात करूं केवल, तो अभी नेक्स्ट प्लान क्या है आपके? बार्क बार्क का एग्जाम्स के से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन है। हाँ मतलब अभी तो मेरा गोल था, अभी तो पीएसयूज के लिए है, तो सबसे पहले प्रायोरिटी तो बार्क एनपीसीआई रहेगा, उसके बाद अच्छा, आईओसीएल ओएनजीसी। तो चलिए उसके लिए अभी के लिए अभी प्रिपरेशन। अभी ओके, बार्क के लिए अभी हमारे काफी सारे हमारे ईआईआई एलुमनाई हैं जो 7 ईयर 8 ईयर ओल्ड, एंड दे आर वर्किंग विद बार्क। तो हम लोगों ने उनसे काफी कुछ एक आप लोगों के लिए जो इस बार बार्क के लिए जो स्टूडेंट जा रहे हैं उनके लिए वी हैव कलेक्टेड सम कंटेंट फ्रॉम दोज पीपल, और वो हम एक व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू हम जितने भी एस्पिरेंट्स हमारे इस साल के होंगे बार्क के लिए, उन सभी को हम एक चैनल के थ्रू हम उनको कोऑर्डिनेट कराएंगे। तो कहने की बातें करने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, बट थोड़ी सी समय की भी थोड़ी सी लिमिटेशंस है। बट मैं एक चीज मैं जरूर कहूंगा, कॉलेज आप इंडिया के किसी भी कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं, कॉलेज कोई बैरियर नहीं है। कॉलेज का काम है आपको एक डिग्री के लिए प्रिपेयर करना। ठीक है, कॉलेज के फैकल्टीज भी अपने हिसाब से तो बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, मेरे को उससे ये नहीं है, बट बियॉन्ड द कॉलेज भी बहुत सारे चीजें होती हैं जो कि आप तभी अचीव कर पाएंगे जब ड्यूरिंग द कॉलेज अगर आपके एकेडमिक्स अच्छी रहती है तो वो चीजें ग्रैब करना, सिक्योर करना वो ज्यादा आसान हो जाती है, क्या केवल? अदरवाइज फिर एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड आपको करने पड़ते हैं। और रही बात गेट और पीएसयूज के लिए, तो मैं तो सीधी एक ही बात में कहूंगा, जहां पे भी अगर डेडिकेशन है
ऑनेस्ट एफर्ट्स आपके हैं, इफ यू आर ऑन अ राइट ट्रैक, इफ यू फॉलो द राइट कंटेंट, राइट रिसोर्सेज, nobody is going to achieve a टॉप रैंक, चाहे वो कोई भी एग्जाम। केवल आप अपने बाकी जो जूनियर्स होंगे उनके लिए एक छोटा सा मैसेज आप दे दीजिए, क्योंकि गुजरात में इटसेल्फ काफी सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं और गुजरात से कंटिन्यूअस ये इतने अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो थोड़े बच्चे मोटिवेट आपकी बात से बहुत जल्दी होंगे। सबसे पहले तो मैं मोटिवेट उन लोगों को करना चाहता हूँ कि जो ऑलरेडी पास आउट है बिल्कुल या फिर ऐसा सोच रहे कि जॉब कर रहे हैं बट अभी उनको समझ नहीं आ रहा है कि आगे क्या करे। तो मैं ऐसा कहना चाहता हूँ, अगर मैंने इतना टाइम मतलब 2020 पास आउट और 3 साल के बाद मैंने अगर इतना अचीव किया, तो अगर आप भी अगर अगर हार्ड वर्क करेंगे, अगर पैशनेट रहेंगे उसके लिए और प्लस आप इतना प्रिपेयर करेंगे, तो आप भी इतना कर सकते हैं। बस इतना है कि कुछ आप गोल अपना सेट करिएगा कि मुझे ये करना है। जबकि मेरा मैं पर्सनल बताऊं तो जब मैं प्रिपेयर कर रहा था तब मैंने मेरे पास अभी भी है वो एक नोट्स में मैंने लिखा था कि गेट ऑल इंडिया रैंक 1 to 100। तो वो मैंने गोल फिक्स रखा था, इस बार तो 100 से अंदर तो लाना ही है। तो बस बिल्कुल मेरा ऐसा ही है कि आप हार्ड वर्क करते रहिए और जब भी आपको ऐसा लगे कि अब पढ़ाई नहीं हो रही या फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं, तो बस वो जो आपने नोट्स लिखा है ना उसको एक बार आप देखिए कि हाँ हाँ ये मैंने गोल रखा है तो इसके लिए मुझे करना है, तो आपको वापस माइंड में उसके लिए मोटिवेशन मिलता रहेगा उसके प्रिपरेशन करने के लिए। तो बस हार मत मानिएगा और ऐसे ही प्रिपरेशन चालू रखिएगा। आज नहीं तो कल अगर आप हार्ड वर्क करेंगे तो उसका फल आपको जरूर मिलता है। जैसे मैंने 2023 में दिया था, तो उस टाइम भी मैंने प्रिपेयर अच्छा किया था, प्रैक्टिस भी की थी, फिर भी मेरा 373 रैंक आया, बट फिर भी मैं हार नहीं मानी और वापस मैंने प्रिपरेशन चालू किया। तो बस यही है कि हार मत मानिएगा और ऐसे ही कंटिन्यूस प्रिपरेशन चालू करिएगा। चलिए, मुझे पूरा हम्म, भरोसा है कि आप जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, केवल की बातों को बहुत ही पॉजिटिवली लेंगे। बहुत सारी चीजें इनसे आपको सीखने को मिलेगी, बट बिल्कुल। स्टिल जो भी व्यूअर्स हैं या जो भी स्टूडेंट्स हैं, अगर किसी भी तरीके की अगर आपको टेक्निकल क्वेरीज अगर किसी इंटायर सब्जेक्ट्स ऑफ द सिलेबस ऑफ गेट केमिकल से अगर होती है, तो वी आर रेडी टू हेल्प यू आउट इन ऑल द पॉसिबल्स वे। ठीक है, फिलहाल अभी केबल्स को we will- मैं इनको जाने देता हूँ और वी विश यू बेस्ट ऑफ लक। और मैं चाहूंगा कि जितने भी अपकमिंग पीएसयूज आपके लिए अभी जो भी अपॉर्चुनिटीज अभी आपको पोस्ट गेट के बाद आपको मिलेंगे, मैं चाहूंगा कि जितने भी अपॉर्चुनिटी, हर किसी अपॉर्चुनिटीज को आप ग्रैब करें और एक नया जो है आप एक रिकॉर्ड सेट करें कि नॉट बीइंग ए 9th रैंकर, मैं आपको ट्रीट कर रहा हूँ सारे सिंगल डिजिट रैंकर को, आई ट्रीट इट एज ए सिंगल रैंकर। रैंक 1 है आप सभी। इट्स जस्ट अ थैंक गेम ऑफ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, कि कहीं प्रेजेंस ऑफ माइंड, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई या कुछ एक माइनर मिस्टेक हो गया, अदरवाइज सारे रैंक 1 है हमारे लिए और सारे आप लोग डिजर्व करते हैं। तो आप ये भी मत सोचिए कि आप रैंक 9 है, मेरे लिए आप रैंक 1 है। और जितने भी है सिंगल डिजिट सारे रैंक 1 है। यू। ठीक है ना? मिलते हैं थैंक यू। आपसे एक नए वीडियो में, तब मैं आपको ऐसे इंट्रोड्यूस करूंगा कि केवल फ्रॉम सो एंड सो पीएसयू आज हमारे साथ हैं, चाहे वो बार्क हो, चाहे आईओसीएल हो, चाहे एचपीसीएल हो, बीपीसीएल हो। लाइन से सारे रिक्रूटमेंट को आप एक एक करके ग्रैब करें। ठीक है ना? और मिलते हैं आपसे एक नए वीडियोस में एक नए अचीवमेंट्स के साथ। केवल थैंक यू सर। बेस्ट ऑफ लक वंस अगेन फ्रॉम इंटायर टीम ऑफ ईआईए। थैंक यू। थैंक यू कीप सर। गोइंग, कीप गोइंग।